سے آواز جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے گا، ایک ماحول بنا لیجیے مجلس میں انشاءاللہ آپ محسوس ہوں گے. دور پڑھیں بآواز بلند.
میرے لہو کی فصیلوں دکھا گئے، میرے وجود کو ہیرا میرے وجود کو ہیرا بنا گئے، یہاں سے شیئر خدا نے ان کو وہی اختیار بخشا ہے، علی کو ہم نے پکارا، علی کو ہم نے پکارا تو آ گئے۔ رو پڑھیں بآواز بلند، وہاں ملائکہ کیا انبیاء ٹھہر نہ سکے، جہاں پہ اپنا مصلی جہاں پہ اپنا مصلی کی فصیلوں میں جا گئے، غرور تھا وہ جنہیں فاقدہ لباس انہی کی دھجیاں انہی کی دھجیاں گئے، تو پڑھیں بآواز بلند، لہو کی فصیلوں پہ جا گئے، غضب کی شامیں غریبہ غضب کے شکر ہمیں بھی عظمت سجدہ ہمیں بھی عظمت سجدہ میرے لہو کی فصیلوں پہ جا گئے، یہ اس کی آبلا پائی کے معجزے کہ پتھروں کو بھی مخمل کہ پتھروں نعرہ حیدری بنا گئے، یہاں سے چار پیش کرتا ہوں بیار شام میں ابلیس
حیثیت ہے شرمندہ خدا کی فتح کے ڈنکے، خدا کی فتح کے ڈنکے بجا چھپے ہوئے تھے علی و بطول کے چھپے ہوئے تھے علی و بطول کے نقاب ان کے رخوں سے، نقاب ان کے رخوں سے سجاتے نبو کی پسینوں سے ستم کی کرسیوں پہ 700 پر ستم کی کرسیوں پہ 700 پر کوئی خبر نہیں ان کو اڑا گئے، کوئی خبر نہیں ان کو اڑا گئے۔ علی کے بغض کی مٹی تھی جن کے چہرے یزید ہی تو نمائندہ سقیف تھا، یزید ہی تو نمائندہ سقیف تھا، اسی کو مرکز لانا، اسی کو مرکز لانا بنا گئے، سجا میرے لہو کی فصیلوں پڑھنے بابا
نظام لو قلم کو نصاب
نوردی حسین کی یہی سفر اسے جنت ماب گئے نتیجہ آپ کو جانے سے پڑھتا ہوں سنیں اپنے دل کے آئینے میں لکھنے میں شعر کو پڑھنے جا رہا ہوں سنیں ضرور بھائی شیخ سنیے گا علی کے بغض کو دل سے نکال دے تیرا لہو تیری مٹی خراب کرے دل سے نکال دے تیرا لہو تیری مٹی خراب نظام آخر میں 2 منٹ نہیں جب کہ نیزوں سے نہ تلوار سے ڈرایا جائے حملہ عباس کا ہے کس سنبھالا چھوڑا جائے پھر تیری پیاس کا مضمون تراشا
کھینچا جائے، سارے دریاؤں کو ایک مشک میں رکھا دشت میں شام بجھانے کا یہی مطلب تھا، پیاس چہروں کا ہر ایک گھر میں اجالا، کے برابر تو نہیں، آب زمزم میرے عشیقوں کے برابر تو نہیں۔ اور دلیل سنیں، موتیوں سے کہاں پانی کو خریدا، موتیوں سے کہاں پانی کو خریدا، ایک دور پڑھے بہادر کہاں پانی کو خریدا جس کی چوکھٹ پہ نبی جائے ستارہ، نتیجے میں پڑھ رہا ہوں حضور بھائی، جزوے لازم ہے مدینے سے یہ زینب کا سفر، کربلا تو وعدے کو نبھایا، ان سے پوچھو کہ معلوم ہے وہ جانتے ہیں
عقل دانشی کے لغت میں اسے پاگل میرے مولا کے فضائل پہ جو گھبرا میرے مولا کے فضائل پہ جو گھبرا جن نشستوں میں نہیں ہوتی علی کی باتیں ہم نہیں جاتے وہاں چلا سوئے نجف بھاڑ میں دنیا میں چلا سوئے نجف بھاڑ میں دنیا بات بن جائے اگر یوں مجھے موتا آگے آگے میرے عباس کا پرچہ اور دے پیچھے پیچھے دیکھیں سبھی والدین سے یہ بار بار ہدایت دی گئی ہے کہ جو بھی والدین کے چھوٹے بچے ساتھ میں آئے ہیں ان کے پاکٹ میں ان کا اپنا کانٹیکٹ نمبر اس کا نام لکھ کے ڈال دیں، مگر ایسا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں بچے کھونے شروع ہو گئے ہیں، گم ہو گئے. ایک بچہ ہے محمد عباس یہاں اسٹیج پہ ہے، بہت دیر سے رو رہا ہے. میں ان کے والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر جلد سے جلد یہاں سے آ کر اپنے بچے کو لے جائیں. اور ایک بچہ پولیس کنٹرول روم میں ہے، 5 سال کا ہے، گرین کلر کا پینٹ پہنے ہوئے ہے. جن والدین کا وہ بچہ ہے برائے مہربانی پولیس کنٹرول روم سے جا کر لے لیں. میں ایک بار پھر سبھی والدین سے گزارش کروں گا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو
جو خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں کم سے کم اتنا کر دیں کہ وہ اپنے بچوں کے پاکٹ میں اپنا کانٹیکٹ نمبر نام لکھ کر ڈال دیں تاکہ اس کو آسانی سے آپ تک پہنچایا جا سکے. شکریہ. سورہ فاتحہ. پڑھنا دوستانہ سے اچھا تھا لیکن مہمان صاحبان والا کچھ نہیں پڑھنا ہے تصور کے ساتھ. دل کو جلاتا ہے یتیموں خود اشک بہاتا ہے یتیموں یوں خاک اڑاتا ہے یتیموں دیکھا نہیں جاتا ہے یتیموں دیکھا نہیں جاتا ہے جب درد سے چلاتے ہیں سہمے ہوئے ماؤں سے لپٹ جاتے ہیں سہمے ہائے ماؤں سے لپٹ جاتے ہیں یہ رو کے بیاں کرتی تھی معصوم وہ درد کی شدت ہے کہ پھٹنے جس روز ملیں گے مجھے سلطان بابا سے کہوں گی میرا دشوار بابا سے کہوں گی میرا دشوار روز سے چھدی پشت دکھاؤں گی میں زندان کی رودا زندان کی رودا جب باپ کا سر آیا قیامت ایک ننھی سی جا خاک پہ خاموش آنکھوں سے رواں خون کے اشکوں اور منہ جگر تھامے سرے بار
بیمار ہے جیسا کہ پہلے بھی ریکویسٹ کی گئی کہ بچے بار بار جو ہے وہ گم ہو رہے ہیں اور یہ کافی مرتبہ اعلانات کیے گئے پر اس کے باوجود بھی جو ہے پیرنٹس اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے. میں تمام والدین سے یہ معتبانہ التماس کر رہا ہوں کہ وہ اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھ کے بچے کی پاکٹ میں ڈال دیں تاکہ وہ بآسانی مل جائے. ایک بچہ محمد کیف جس کی عمر 5 سے 6 سال ہے، دھوندلی سے آیا ہوا ہے، اگر وہ کسی بھی صاحب کو ملے تو یہاں برائے کرم وہ اسٹیج تک اس بچے کو چھوڑ دیں. اور انشاءاللہ سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے محترم جناب علی شاہ زیدی صاحب و ان کے ہمنوا صاحبان حضرات. چونکہ پراپرٹی وہ نہیں ہوتی، وراثت وہ نہیں ہوتی جو حصے میں پراپرٹی کے آ جائے کہ بھائی انسان کے ہاتھ اگر کوئی پراپرٹی آ جائے اپنی وراثت میں تو وہ صرف وراثت نہیں ہوتی بلکہ وہ سخن، وہ فہم جو آدمی تک منتقل ہو جائے اسے اصلی وراثت کہا جاتا ہے. محترم علی شاہ زیدی صاحب کے والد محترم ایک بہترین اور کامیاب سوزخان تھے، انہیں یہ وراثت میں ملی ہے. جو سوزخانی، جو مرثیہ خانی آپ کے سامنے ابھی علی شاہ زیدی صاحب نے کری، یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. آئیے حضرات، جا بجا اپنے بزرگوں کا چلن رکھتا ہوں. دیکھیں علی شاہ بھائی، جا بجا اپنے بزرگوں کا چلن رکھتا ہوں، مدحت آلے پیمبر کی لگن رکھتا ہوں، ایک مہکتا ہوا سرسبز چمن رکھتا ہوں. علی شاہ بھائی آپ دعا میں بھی شامل ہیں. پھول برساتا رہوں ایسا دہن رکھتا ہوں. ایک لالو جواہر کی دکان کھلتی ہے، ایک زبان بند ہوئی ایک زبان کھلتی ہے. اور ایک لالو جواہر کی ایک زبان بند ہوئی ایک زبان کھلتی ہے. آج کے اس مجلس کے خطیب وہ ہیں جو حق کو حق کہہ کے پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، کوئی بھی معاملہ ہو، اور وہ حسینی ہی کیا جو حق بجانب نہ ہو. کیا فائدہ اس تقریر کا، اس ذاکری کا کہ جو حق کو حق نہ کہہ سکے. محترم جناب عظیم امری صاحب کہتے ہیں کہ زندگی کیا چیز ہے آلے نبی کے سامنے. دیکھیں بھائی،
موت گھبرائی حسین ابن علی کے سامنے. موت عظیم امروی صاحب کہتے ہیں موت گھبرائی حسین ابن علی کے سامنے جرت حق گوئی اے سجاد تم سکھلا گئے. دیکھے گا جرت حق گوئی اے سجاد تم سکھلا گئے, تم نے ظالم کو کہا ظالم اسی کے سامنے. جرت حق گوئی اے سجاد تم سکھلا گئے, جرت حق گوئی اے سجاد تم سکھلا گئے, تم نے ظالم کو کہا ظالم اسی کے سامنے. آئیے حضرات حالات حاضرہ کی نبض پر انگلیاں رکھ کر خطاب کرنے کا فن جس خطیب کے پاس ہے اسے عالی جناب مولانا محمد کاظم شبیب صاحب قبلہ کے نام نامی اور اس میں گرامی سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. میں محترمانہ التماس لے کے ان کی خدمت عالی قدر میں پہنچتا ہوں, ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے افکار عالیہ سے اس مجلس کو مستفیض فرمائیں. آپ حضرات بابا سے بلند درود سے استقبال فرمائیں. آج کے دور میں پورا زور پوری سیاست اس بات کے اوپر ہے کہ جو ہے وہ انسان کو دکھے نہیں اور جو نہیں ہے اسے دکھایا جائے. اسی کے اوپر پورا کاروبار چل رہا ہے, پورا نظام چل رہا ہے. جو ہونا چاہیے اسے نہیں ہونے دیا جائے اور جو نہیں ہونا چاہیے اسے ہونے دیا جائے. یہ پورا جو سسٹم ہے دنیا میں, یہ پورا جو نظام ہے دنیا میں, تو اسی چیز کے لیے اور اسی چیز کو پروجیکٹ کرنے کے لیے یہ جو ہے جو اصل ہے وہ آپ کو نظر آئے. جو اصل دہشت گردی ہے, جو اصل ٹیررزم ہے, اسے ہیومن رائٹس پر آگے پیش کرو. پورا کاروباری پورا غور اسی بات کو جو اصل ملکیت ہے اسے اسلام بنا کے پیش کرو. جو اصل اسلام ہے اسے کچھ اور دکھا دو. جو اصل حقیقت ہے, جو اصل چیزیں ہیں, یعنی دنیا میں جو چیز اس طرح سے ہو کہ جس کے پیچھے انسان روتا پیاسا مر جائے لیکن حقیقت اسے حاصل نہ. اس کے لیے علامہ نظری کہتے ہیں کہ یہاں پر جو سوراخ کے نہیں علاج تشتہی جمیل پیاس ہے تو آپ فریب کھا سوراخ. یہ پورا گیم آپ بہتر جانتے ہیں. ویسے بچوں کے لیے ایک مثال سوراخ کی میرج کی جو مرجیا کہتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ ریگستان میں ریفریکشن آف لائٹ کی بنا کے اوپر جب گرم ہوا ہلکی ہو تو اوپر جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوا پیچھے کی طرف آتی ہے تو جو سایہ ہے جو امیج ہے الٹا بنتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ فوڈ میں جو چیزیں ہوتی ہے جو آپ یہاں بھی محسوس کرتے ہیں الٹی نظر آتی ہے. تو کوئی سمجھتا ہے کہ پانی کا تلاش, پانی کے تلاش میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پانی ہے, وہ پہنچا وہاں, اسے دیکھا کہ وہاں تو چیز صحیح ہے, کوئی سے چیز الٹی نہیں ہے. پھر پہنچا پھر اس کا آگے دیکھا کہ شاید وہاں پانی ہو, وہ پانی کے تلاش میں ہر چیز کو الٹا لے کے سمجھتا ہے کہ پانی میں سایہ الٹا بن رہا ہے. وہ دوڑتا دوڑتا ریگستان میں مر جاتا ہے, پانی بھی نہیں ملتا, بہت
इंसान को हजार सिस्टम की तरफ ले जाया जा रहा है कि इससे सुकून मिल जाएगा, सुकून कहीं नहीं मिलेगा। दुनिया तलाश करती है साहिल निजात का, दिखला दे कोई उसको किनारा फराज का। दुनिया तलाश करती है साहिल निजात का, दिखला दे कोई उसको किनारा फराज का। चले रामी हंस रहे कि जहाँ पे निजात मिलने वाली वहाँ सूरत का है। इंसान को शराब के पीछे दौड़ाया जाए, इंसान को कहने के पीछे देख बैठेगा, पीछे दौड़ा जाए। जब ये सारा सुकून, सारा इतना फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया, थर्ड वर्ल्ड वार के प्रेडिक्शन हो रहे हैं। कोई कहता है यही थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, तो यही आगे मुझे थर्ड वर्ल्ड वार है, मालूम क्या है। वो ये ना उससे बहती वार हो, ना उससे बहती है। वार में जब हम मरे तो ऐसा मरे कि सब ऊंचा हो। देखिए थर्ड वर्ल्ड वार, फोर्थ वर्ल्ड वार से मतलब नहीं है। वार हो जितनी हो, जब बेईमान रहेगा तो कोई शरीफ आदमी बेईमान के सामने झुकेगा नहीं। कोई शरीफ आदमी, ये असली इंसान है, कोई शरीफ आदमी। हुसैन इब्न अली एक ही बात सिखाई है, ये बहस बिना वजह की बहस है कि हुसैन मोर्चा हार गए तो जंग जीत गए, जंग जीत गए तो मोर्चा हार गए। अरे तुम्हें क्या तमन्ना है कि जब हुसैन के साथ मुझसे हाथ लगा दो? अरे हुसैन से तो जुड़ जाता है, वो जीत जाता है, और जीत के इतना बुलंद होता है जब खामनाई को समझने के लिए हुसैन को समझना होगा, हुसैन को समझने के लिए खामनाई को समझना होगा। हुसैन के साथ हार, हुसैन के साथ शिकस्त, ये जो बातें की जाती है, ये जो गुफ्तगू की जाती है, तो हुसैन मोर्चा जीते तो जंग आ गए, जंग जीते तो मोर्चा आ गए। अरे जंग तो मोर्चे की बात करते हो, हुसैन कहाँ जंग तो कहाँ मोर्चा। अगर यजीद की फौज है कि नहीं, यहाँ 72 थे और मैं वो 71 मरता। अगर यजीदी 71 मरता, ये 72 मरते, तो आप कह सकते थे हुसैन आ गए और मैं हुसैन आ गए, या हुसैन से बैयत दे लेता, या हुसैन से तो दूर की बात, हुसैन के किसी सिपाही से बैयत दे लेता, हुसैन के किसी बच्चे से बैयत दे लेता, हुसैन के घर की किसी औरत से बैयत दे लेता। अब वो सब बहुत बड़ी बात है। अरे कोई असले हुसैनी से बैयत ले, असले हुसैनी मेंबर पे आने वाला नहीं होता, गला कटाने वाला होता है। खामनाई साहब से बैठे मेंबर पे आने वाले तो ऐसे ऐसे आगे सरवार भेजे ऐसे ऐसे आते हैं, ये मेंबर पे भी आते हैं और जालिम के कुर्सी पे भी बैठते हैं, और मेंबर पे भी आते हैं, जालिम का सर भी झुकाते हैं। अरे असल वो होता है कि जहां भी जाए गैर की मदद करूं शह का सना खा होगा, गैर की मदद करूं शह का सना खा होगा। चाहे मेंबर पे हो, चाहे ऑफिस पे हो, चाहे खेल के मैदान में हो, गैर की मदद करे हो, सही होता है वो नहीं कि वक्त पे मौका लेके मेंबर पा गया, मौका लिया किसी पार्टी की तारीफ कर दी, किसी बेईमान की तारीफ कर दी, किसी मुतवल्ली की तारीफ कर दी, किसी लुटेरे की तारीफ कर दी, किसी माले हुसैन के लूटने वाले की तारीफ कर दी, किसी यतीम बेवा के माल के लुटेरे की तारीफ कर दी। और मैं हुसैन की अली और मैं तो कहने का मकसद ये है, ये इंसान हुसैन इब्न अली, हुसैन का चाहने वाला वो है जो सर नहीं झुकाता, जो सर ये तो हुसैन इब्न अली, असहाबे हुसैन, अंसारे हुसैन की मंजिल बहुत बुलंद है। अरे असले हुसैनी झुकता नहीं है, असले हुसैनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता जालिम से, क्योंकि दीन क्या है, दीन से हुसैन के हो तो शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन है हुसैन, दीवाना हुसैन, ये तो ही है, ये तो मसला ही है। असले हुसैनी भी ऐसा दीनदार होता है कि दीन की तारीफ हुसैन और औलाद हुसैन ने, मोहम्मद आले मोहम्मद ने। कि असले दीन क्या है, असले दीन ये है कि जालिम के सामने हक बोलना। मेंबर पे तो आप बोल लीजिएगा कि मेंबर है, आप भी हमारे, हम भी आपके। कमाल ये है कि जालिम का दरबार हो वहां बोलो, यहाँ तो घर से मुतवल्ली के खिलाफ नहीं बोलते, ये ईमानदार से हटा देगा तो कहना जालिम यहाँ घर से मुतवल्ली के खिलाफ नहीं बोलते, घर से चेयरमैन के खिलाफ नहीं बोलते, घर से बहुत सी जगह ऐसा नहीं बोलते, अगले साल अगर वादा नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। अरे घर से अमेरिका के खिलाफ नहीं बोले कि बोलेंगे तो वीजा नहीं मिलेगा, तो घर कैसे चलेगा। हुसैन इब्न अली, हुसैन किसे कहते हैं, हुसैन की मंजिल जाने दीजिए, असहाबे हुसैन, अंसारे हुसैन, उनकी मंजिल, उनके घर के बच्चे, उनके घर के औरतें, ये फालतू बात कहाँ से होती है। जब हुसैन मोर्चा जीत गए तो जंग हार गए, जंग जीत गए तो मोर्चा हार गए। अरे जो हुसैन से जुड़ जाता है उसकी जिंदगी में कभी हार नहीं है, और उसकी जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं है।
تو یہ بحث کرنا کہ وہ ارے بات تو کب ہوتی، یا حسین جھک جاتے، حسین سے کچھ سپاہی جھک جاتا، یا ایسا ہوتا کہ حسین کی تیری 72 مارے گئے تھے، یزیدی 71 مارا جاتا۔ 72 نے کم سے کم 11,000 لوگوں کو، اور بیلجیم کی لائبریری میں جو خط رکھا ہوا ہے ابن حمید نے مسلم کا، اس کے لحاظ سے کم 67,000 لوگوں کو مارا۔ 72 نے 67 کو مار دیا، میرا وجہ بحث ہوتی ہے حسین جنگ جیت گئے کہ وہ چڑھا گئے، حسین جنگ جیت گئے کہ وہ چڑھا گئے۔ ارے حسین کا کمال تو یہ، حسین کا نام دینے والا خامنہئی نے جھکا، اور ہم خامنہئی نے اب تو دنیا کی تاریخ لکھی جائے گی، بیفور خامنہئی آفٹر خامنہئی، وہ اور بات ہے کہ حالات دیکھتے کہ دیکھیے فتح مکہ کے لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، فتح مکہ میں جو کامیاب ہوئے لوگ ہیں، ایمان لائے لوگ ہیں، ان کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ سب مفاد کے تحت ایمان لائے، قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو لوگ اللہ دیو کی ایمان لاتے ہیں ان کے ایمان کا بھروسہ نہیں ہے، وہ واقعات کی ضرورت سامنے ہے۔ امام علی نبی کے ساتھ وہ سلام کا زمانہ ہے، دربار میں شخص پکڑ کے لایا گیا، جب پکڑ کے لایا تو ایمان لے آیا، جب ایمان لے آیا بھائی اس میں پکڑ کے لایا گیا، جرم کی وجہ سے جرم ثابت ہو گیا، جب جرم ثابت ہو گیا تو ایمان لے آیا، جب ایمان لے آیا اب علماء میں بحث شروع ہو گئی کہ اس کو سزا دی جائے کہ نہیں دی جائے، ایمان لے آیا، اب آپس میں علماء میں گفتگو چل رہی ہے، امام کا گزر ہوا، امام کا گزر ہوا، امام کو بلایا گیا، امام نے کہا تم نے قرآن کی آیت کیوں پڑھی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو آزاد دیکھ کی ایمان لائے، اور کشتی والا واقعہ سنایا کہ کشتی جب کنارے پہ لگ جاتی ہے، جب ہوا میں پھنستی ہے تو کہتے ہیں کہ معمول میں مدد کرتے، اور جب کشتی جب کنارے لگ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ یہ بات نجات کی کشتی والے بتائیں گے، اس آیت سے تفسیر جو نجات کی کشتی ہے، جو کشتی ہے نجات ہے وہ بتائیں گے۔ لیکن یہ آزاد دیکھ کے تو بہت سے لوگ حالات دیکھ کے بولتے ہیں، تو کل خامنہئی صاحب سے خلاف بول رہا تھا، دیکھا مجمع تو ایک ہو گیا ہے تو فیور بھی بولنے لگا، تو اس لیے ایسے لوگوں کا بہت آدمی اعتبار نہیں رہتا ہے، اس لیے کیسے حاضری لگانے سے کوئی ایماندار نہیں ہو جاتا ہے۔ ارے تم اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، میں نے کہا تھا جو نہیں تھے ان کے لیے تو اپنے کوئی بھی منظر سے پایا نہیں ہے، کوئی بھی مار سے پایا نہیں ہے، کوئی بھی شکر سے پایا نہیں ہے، کوئی بھی مانے بےدخلی سے پایا نہیں ہے، سب کسی شہر میں رہتے ہیں، جو ملک میں کسی محلے میں ہے، کسی گاؤں میں ہے، کسی شہر میں ہے، کسی اسٹیٹ میں ہے، کہیں نہ کہیں تو ہے، اور جہاں جہاں ہے قریب قریب ہر جگہ کچھ نہ کچھ مال امام کی لوٹ ہے، مسجد کے پیسے کی لوٹ، امام باڑے کے پیسے کی لوٹ، غریب و بیوہ کے پیسے کی لوٹ۔ ارے جو مسجد امام باڑے اور غریب و بیوہ کے پیسے کی لوٹ پہ اپنے محلے گاؤں میں نہ بولا، وہ کلچر ہاؤس پہ حاضری لگا کے کیا کر لے گا؟ یہ یاد رکھیے گا، ایک سے ایک لوگ آتے ہیں تماشے کے بعد، ایک سے ایک لوگ۔ پہلے تو اپنے علاقے کے روپ سے بولو، اپنے حیدرآباد کے مال کے روپ سے بولو، اپنے محلے کے روپ سے بولو، اربوں روپیہ لوٹ گیا اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے محلے میں، وہاں تو نہیں بولے۔ ارے یہ تو بات دور کی بات ہے، کلچر ہاؤس یا مسجد چاہے پتا، یہ سب دور کی بات ہے۔ اگر کوئی اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقوں میں، اپنے ہمسایوں میں لوٹ پہ نہیں بولتا، وہ سرکار محلہ جائے گا، وہاں زیارت قبول نہیں، تو شاہ پردہ کیا ہے، کلچر ہاؤس کیا ہے؟ حدیثیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، بڑی بڑی روایتیں، تو اپنے علاقے کے، اپنے ہمسائے کے، اپنے محلے کے، اپنے گاؤں کے علماء کے مال کی لوٹ کے اوپر، کمزوروں کے مال کی لوٹ کے اوپر، امام باڑے مسجد کے مال کی لوٹ کے اوپر نہیں بولتا ہے۔ تو روایتیں وہ ایک نہیں سینکڑوں روایتیں موجود ہیں۔ اس کو امام نے، امام باڑہ امام کی جگہ امام باڑہ ہے، کوئی متولی باڑہ نہیں ہے، امام باڑہ ہے تو چیئرمین باڑہ نہیں ہے، امام باڑہ ہے تو رئیس اور زمیندار باڑہ نہیں ہے۔ تو جب زندگی میں اماموں نے اپنے در پہ نہ آنے دیا، جب زندگی میں اماموں نے اپنے در پہ آنے نہیں دیا، تو تم آ جاؤ اور بات ہے، ابھی کوئی روکنے والا نہیں، لیکن قبول نہیں ہونے والا۔ ایک نہیں سینکڑوں باتیں ہوتی، اگر کسی کو ستایا پہلے اس سے معافی مانگو، اگر تم نے ستایا ہے کسی مومن کو، کسی انسان کو، کسی شخص کو، اور میں پہلے اس سے معافی مانگو۔ جب تک اس سے معافی نہیں مانگو کہ میں معافی مانگوں، نے بتایا نہیں بتایا کہ جس کو ستایا، جس کو اذیت پہنچائی، جس کا تم نے مال کھایا، پہلے اس کو واپس کرو، پھر میرے نام پہ بانٹو۔ تم نے جس کا مال کھایا اس کو تو واپس نہیں کیا، میرے نام پہ تبرک نہ بانٹ دینا، میرے نام پہ خرچہ بعد میں کرنا۔ ہماری قربانی کا مقصد ہی تھا کمزوروں کو حق دلانا، ہمارے قربانی کا مقصد ہی تھا کمزوروں کو حق دلانا، اس لیے کہ نماز
नमाज रोजे तो कहीं वैसे ही है, आप तो वैसे खा लीजिए और इमाम कहता मैं आपको मारूफ पे ले जा रहा हूँ, नमाज तो हो रही है, हज तो हो रहा है। मैं इसलिए निकला कि एक खानदान में गुरबा का माल जमा हो गया। इमाम तो निकले हैं कि एक घर में जब कौम का माल जमा हो जाए तो उसे लोगों में लाके बांटो। इमाम तो इसलिए निकले, इमाम तो कहे नमाज तो हो ही रही है, इमाम तो कहे हज तो हो ही रहा है। और कैसे ये बात कहाँ से आ गई? इमाम ने कुर्बानी दी। ये बैठ के जो लोग अज़ादारी को नमाज से टकराते हैं और नमाज पढ़ने से टकराते हैं, ये वो लोग हैं जो जुल्म से नहीं टकरा पाते। इमाम ने कुर्बानी दी, जालिम से टकराओ, लुटेरे से टकराओ, अमेरिका से टकराओ, इजराइल से टकराओ, यहाँ रह के उन लोगों जिन्होंने टकराने वाले सिलसिले को खास करके हिंदुस्तान के माहौल में शुरू किया। नमाज अफजल का अज़ादारी अफजल, नमाज उनके लिए ना नमाज अफजल, उनके लिए लिफाफा अफजल है, उनके लिए कौन अफजल है? अजय लीजिए सबका यहाँ के ऊपर पे उठाना पड़ेगा। मेरे चौकी हो गए जिन्होंने इडली बहस है, जिसको बनाने आती है बहस की कोई जरूरत नहीं, हिल लगा। लेकिन बेहतर लोग जो अमेरिका में ऐसी रफ्तार करते हैं, वो खुल के कभी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोले, जो खुल के कभी इजराइल के खिलाफ नहीं बोले, बेहतर वही लोग जो वक्त के यजीद के खिलाफ नहीं बोले और बहस करते हैं कि अज़ादारी अफजल के नमाज अफजल। अज़ादारी इसलिए है कि जो समाज में अपने को अफजल समझता है दौलत की बिना पे, माल की बिना पे, हुसैन का नाम, हुसैन का जिक्र, हुसैन की अज़ादारी, हुसैन का मातम इसलिए है कि जो समाज में अपने को बड़ा समझ रहा है दौलत के नाम पे, पैसे के नाम पे, पोस्ट के नाम पे, उससे अफजल न होने दो। इमाम हुसैन की अज़ादारी का तो मतलब है जो दौलत, माल, सरबत और पैसे, जो अल्लाह ने दौलत, माल और सरबत को बर्तरी का मुकाम नहीं बनाया, बर्तरी का स्टेटस नहीं बनाया। दौलत, माल और इन्ना अकरम को इंदल्लाह अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक काबिल एतबार है, वो तकवा रखता है। तकवा क्या है? तकवे में कहीं बिजली नहीं है, तकवे में कहीं माल नहीं है, तकवे में कहीं के ऊपर जो नस्ल नहीं है। कुरान साफ साफ तकवे को बयान करता है, मुकुना बे है, मुकुना बे है। तो कुरान क्या है कि वो लोग तकवे वाले जो वादा करे उसे पूरा करे, करवा दे मोहम्मद वाले। मुकुना बे है बताए जो वादा करे उसे पूरा करे। और वासाए और सजाए वो लोग जो मुसीबत के सख्तियों में, परेशानियों के साथ वो लोग उड़ाए के नदीना सदकू और उड़ाए जो मुसीबत में, सख्तियों में, परेशानियों में साथ है, वो है मुत्तकी, वो है काबिल एतबार। और मुसीबत सख्तियों के साथ रहने का मतलब क्या है? कि मुसीबत, सख्ती, परेशानियों में अल्लाह के दिए हुए वादों पे पूरे रहे, ताकि किसी जालिम का दामन पकड़ ले, किसी फासिक को फासिक का दामन पकड़ ले, न किसी जालिम का साथ दे। कुरान साफ है, जब मुकुना बेटी बताए तो सामने फिर बादशाह और सरदार और हिनल मार कौन लोग मुत्तकी है, वह सामीना फिर बादशाह, यानी जो लोग मुसीबत में, सख्तियों में, परेशानियों में साथ खड़ा रहे। ये नहीं कि बेईमान का दामन पकड़ ले, ये नहीं कि जालिम का दामन पकड़ ले, ये नहीं कि किसी फासिक का साथ दे, नहीं। तकवे की अलामत क्या है? ये मुसीबत और जालिम का साथ ना ले, अल्लाह ने वादा किया है उसको ऊपर ठीक है। ये लोग मुत्तकी उड़ाए का नतीजा, ये वो लोग हैं कि जो लोग सच्चे हैं, जो लोग मुत्तकी हैं, जो लोग सीखने वाले। और अब फिर कुरान आगे बढ़ के बयान कर रहा है, कुरान साफ है कि मैं जो मेयार जानता हूं वो मेयार जानता, वो ईमान और तकवा, ईमान और इल्म। कुरान साफ है, हम किसे रुतबा देते हैं? जिसे ईमान देते हैं और इल्म देते हैं। तो अगर कोई अल्लाह के बनाए हुए स्टैंडर्ड के, जैसे हर जगह स्टैंडर्ड, जैसे स्कूल, कॉलेज, मदरसा, एक स्टैंडर्ड बना हुआ, एक स्टैंडर्ड बना हुआ, किस क्राइटेरिया से पूरा उतरेगा वो होगा, किस क्राइटेरिया से पूरा उतरेगा वो बना होगा, वो ये होगा वो बना होगा, जो बना होगा पैसा होगा, जो भी होगा। जब एक क्राइटेरिया बना हुआ है तो उस क्राइटेरिया से जो आएगा वही होता लेगा। अगर कोई क्राइटेरिया पे आए बगैर, स्टैंडर्ड आए बगैर होता लेता है तो जो भी उसे डालेंगे उसकी मुखालफत करते हैं। जो भी दायरा कानून का बना हुआ है तो जो भी क्राइटेरिया को हटा दे और पाया वो आए और आने के बाद होता ले तो उस
उसके खिलाफ लोग खड़े होते हैं। अगर कोई इस्लामी समाज में ओहदा दे रहा है दौलत की बिना पे, माल की बिना पे, सबक की बिना पे, जबकि अल्लाह कह रहा है मैं ओहदा देता हूँ ईमान और इल्म की बिना पे, तो जहाँ जहाँ ओहदा को ईमान और इल्म की बिना पे ना हो, दौलत और माल की बिना पे हो, तो उस पे जो असल हुसैनी होगा उस ओहदे को कभी मानने वाला नहीं है। तो इमाम हुसैन के ज़ाली का मकसद ये है कि जालिम के खिलाफ बोलो, सबसे बड़ी इबादत है जालिम के खिलाफ बोलना, न कि जालिम के सामने मुंह बंद कर लेना। हज़रत अली का फलसफा ये कि जालिम के खिलाफ फतवा देने का मामला है। एक पूरा फलसफा हज़रत अली का और इसी को जोश में बयान, जोश क्या कहते हैं, जोश क्या कहते हैं कि करबला एक तदल्लुल है मोहित के दौरान, करबला फिर बने सरमाया पे बढ़ते तमाम, करबला तब पे है सरबते आवाज़े अल्लाह, करबला जुरते इनकार है पेशे सुल्तान, फिक्र अफसोस यहाँ काश नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिक्र अफसोस यहाँ वो भी फिक्र समाज में जगह की जा रही हो, तो आप क्या हक को जो जला दे फिक्र अफसोस, जो फिक्र हक को जलाती है, हक को दबाती हो, क्या जोर से दबदबे के जरिए, जबरदस्ती के जरिए लोगों के फिक्रों को दबाया जा रहा हो, लोगों के फिक्रों के ऊपर कब्जा किया जा रहा हो, और माया से अगर वो फिक्र समाज में हावी हो तो करबला का पैगाम ये उस फिक्र के मुकाबले खड़े हो, उस फिक्र के मुकाबला करो। तब जाने के बाद अब जब आप ऐसे फिक्र को दबाएंगे जो फिक्र अफसोस है, तो फिर ऐसे लोग समाज को जलाएंगे। फिक्र अफसोस के खिलाफ आप खड़े होंगे तो वो लोग समाज को जलाएंगे, दबाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होना असले हुसैनियत, असले हुसैनियत हुसैनियत नहीं है कि फिक्र अफसोस हो वहां हम बैठ जाए और बिल्कुल इस तरह बैठ जाए कि ना अपने चेहरे से साबित करें हम नाराज हैं, ना अपने जबान से साबित करें हम नाराज हैं, ना अपने अंदाज से साबित करें हम नाराज हैं। कहीं ना कहीं हुसैन नक्शे अल्लाह में बात करते नक्शे अल्लाह बस हैरान खुश, बस हैरान खुश, यानी हम ये दायरे इल्लाह के फलसफे को समाज में पेश करें। हर वो निजाम, हर वो शख्स जो अपने उन कामों के जरिए जो काम मशरूअ नहीं है वो लोगों को धोखा देता हो, वो लोगों के इख्तियार से पता करता हो, तो जो हुसैनी होता है वो हुसैनी खड़ा से बताता है, अपने अमल से बताता है, अपने तरीके इंकार से बताता है कि हम इसके से राजी नहीं है। तब जाने के बाद वो इंसान का अमल और किसी इंसान के अमल में वजन पैदा होता है। वजन पैदा होने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इंसान दुनियावी कशिश से बाहर निकले, तब उसके अमल में बर्बाद। जैसे मैं एक मिसाल दे दूं, जरा इस मिसाल को दो मिनट गौर कीजिए। अगर आप अमीर जमीन पे चल रहे हैं तो रेपुटेशन के मौके चल रहे हैं, एक कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा उठाया, लेकिन जैसे आहिस्ते आहिस्ते आप जमीन के रेपुटेशन के, जमीन के प्रदर्शन के खिलाफ ऊपर जाएंगे, आप एक कदम उठाने के लिए ऊपर कम लगेगी और ऊपर कम लगेगी और ऊपर, जितना हम जमीन से ऊपर जाएंगे उतना हमारा सोच कम लगेगा, काम ज्यादा होगा। पहले एक कदम उठाने में थक जाते थे, अब एक कदम यहाँ रखेंगे, दूसरा वहां रखेंगे। क्यों? क्योंकि जमीन के खिंचाव से बाहर निकलेंगे। वैसे ही नफ्स के खिंचाव से बाहर निकल जाए तो फिर हमारा अमल थोड़ा सा होगा, लेकिन एक जरूरत इबादत से सराय में भारी हो जाए। ये इतनी भारी नहीं होता है, और मैं इसलिए कि जमीन के खिंचाव में आपने एक काम किया, लेकिन खिंचाव से ऊपर चले गए, कशिश खत्म हो गई। जब कशिश खत्म हो गई तो ये कदम भी यहाँ उठाया था, यहाँ से वहां गया, लेकिन जब आप कशिश थे, इसे नफ्स के खिलाफ जो काम करे, एक इंसान नफ्स की मोहब्बत से कदर करता, कहीं पे मेरा नाम होगा, कहीं पे हमारा जिक्र किया जाएगा, तो वो इबादत जो बिल्कुल नफ्स के खिंचाव से हट जाए। अब जो नफ्स रसूल होगा वो नफ्स के खिंचाव से ना निकले तो वो निकलेंगे जो रसूल से 200 दिरहम का ऊँट 700 दिरहम में बेच रहे हैं।
करना है डीएनए की बात की क्या आपको नहीं पता, तो अगर किसी को टेस्ट करना है कौन क्या है, भाई ये सेफ बात भाई की रात में डीएनए ये जान करा हो तो इल्जाम करा बहुत और रोज कहीं में पड़ता जा रहा है आपने सैकड़ों निशान होगा। जैसे कभी किसी ने सोचा था, कभी किसी ने सोचा था कि जमीन के नीचे भी पहाड़ है, मौलानी नहीं बनाओ मैं बना, तो जमीन के नीचे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं तो उतने बड़े पहाड़ जमीन के ऊपर नहीं, ये मौलानी नहीं बनाओ। आज की तहकीक है कि जमीन के नीचे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये वो नहीं बता सकता जो पहाड़ों पे भागता हो और रसूल बुलाते हो, ये वो बताएगा जो मैदान में पहाड़ की तरह चल के रहता है। वो क्या बताएगा जो पहाड़ों पे भागता हो, ये वो बताएगा कि जमीन के नीचे ऐसे ये नहीं वाला बताया अल्लाह ने जो कुरान की आयत है हमने पहाड़ की मीलों को क्यों गाड़ा जमीन के ऊपर, ये इमामों ने क्यों बताया, ये इमामों ने अर्ज किया बस हो नहीं। कभी किसी ने सोचा था कि फोटोन पार्टिकल जो है इसके ऊपर टाइम का असर नहीं होता है, ये फोटोन जो लाइट का जो पार्टिकल है मतलब खुद भी किया जरा इल्म अभी के कारखान को पढ़ने दिए जो हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे इमाम ने फरमाया हमारी हदीसों को पेश करते रहो बताते रहो, आइंदा जमाने में लोग बेहतर समझेंगे मैं क्या बताना चाहता था। जब वो वसाइल पैदा हो जाएंगे जो मेरी बातों को समझने लाइट की स्पीड क्या है, तो फोटोन पार्टिकल क्या होता है, तो जमीन के मामला और आसमान के मामला क्या है, पैदल यूनिवर्स क्या है। कभी किसी ने सोचा किसी यूनिवर्स को नहीं समझ पा रहा, जब आइंस्टाइन ने पहली बार पूछी तो उसने यही कहा कि इस यूनिवर्स का डायमीटर 3000 लाइट ईयर, 3000 लाइट ईयर। आज पैदल यूनिवर्स की बात आ रही है और जब पैदल यूनिवर्स की बात आ रही है तो साथ साथ इमामों ने जो पहले बयान किया लाहौर में कि उन तमाम कायनात का इल्म हमारे पास है, इसलिए शख्स आता हमारे पास है। ये मौला ये बताइए आप जरा भी सोचते नहीं है, आप जरा भी सोचते नहीं और जवाब दे देते वजह क्या है, क्या ये बताते हैं हाथ में कितनी उंगली क्या 5 का तुमने सोचा का जैसे तेरे हाथ में 5 उंगलियां सोचा नहीं वैसे सारी कायनात हमारे नजरों के सामने है और हमारी कायनात ऐसी कई रायतें होती है हमने करके दिखाया और इन चीजों को इसलिए कि उसकी वजह थी ये सब कुछ इनकी नजरों के सामने था। जब कुछ नहीं था तो ये थे, जब कुछ नहीं रहेगा ये तो अलग मामला है। ना कुछ था तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता, तू बोले मुझको होने दे, ना होता मैं तो क्या होता, ये तो मेरा मामला है। लेकिन ये उस वक्त मुझे जब कुछ नहीं था, ये तब भी रह जाएंगे कुछ नहीं रहेगा, इनका मकाम इतना मकाम इनकी मंजिल तो जहां के ऊपर आपने कभी तसव्वुर किया, आपने कभी गौर किया कि ये ये छोटे छोटे आइटम हैं, इमाम वक्त के आगे कैसे जान सकते हैं, वक्त के पीछे कैसे जान सकते हैं, टाइम मशीन क्या है, अरे समझना है तो इंसान अपने आंखों के दरवाजों को खोले, तासुब का दरवाजा बंद करे, कायनात की तहकीक को देखे, इमामों के अखबार को देखे, इमामों ने पेशन दुनिया की उसे देखे, जो पेशन दुनिया चाहे ईरान हो, चाहे इसमें साथ देने वाले की हो, भागने वालों की हो, साथ देने वाले ये सब मौजूद है। अरे यही तो मैं दोनों बातें ध्यान करूंगा, एक बात इमाम फरमाते इसी जंग के बारे में के सवाल है जो हालत पैदा हो गए। इमाम कहते हैं इस जंग के बाद याद रखिएगा 3 किस्म के लोग हो जाएंगे, इस जंग के बाद 3 किस्म के लोग होंगे। एक वो लोग होंगे जो जंग छोड़ के भाग जाएंगे, वो कभी माफ नहीं किए जाएंगे। जो इस जंग को छोड़ के भागेंगे वो कभी माफ नहीं किए जाएंगे। और कौन लोग, वो तमाम लोग जो जंग को छोड़ के भागने का मतलब नहीं नहीं में होंगे, वो पूरी दुनिया में होंगे कि जो इस डर से न बोलते हो कि बोल देंगे तो फाइट तैयार हो जाएगी तो अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। ये सब जंग छोड़ के भागने वालों सबको मालूम है कि कौन कौन किस डर से नहीं बोल रहा है। मेंबर पे बोलना और बात है, मस्जिद में नारे हैदी लगाना और बात है, लेकिन जहाँ जालिम खड़ा हो वहाँ नारे हैदी लगा के डर जाना ये सिर्फ मौलाइयों का काम होता है। जहाँ जालिम खड़ा हो, लुटेरा खड़ा हो, अरबों का इमाम का माल लूट रहा हो, दरे खैबर ना अब होगा ना है, न दरे खैबर अब है ना होगा ना दरे खैबर, लेकिन आज भी दूसरे तरह से वो दरे खैबर क्या था, इसके
कमजोरों का माल जमा हुआ। याद रखिएगा, जिसके पीछे लुटेरे आज भी लगे खैबर कुछ शक्ल नहीं है, लेकिन हर महल्ले में, हर गांव में, हर इलाके में और हर नारे हैदरी लगाने वाले जो अली खुल रही है, कौन दिखाने के लिए लगा रहा है, कौन अली की मोहब्बत में लगा रहा है। इसलिए कि हर गांव में, हर महल्ले में, हर शहर में और जहां जहां कमनोशियों का माल जिस घर में जमा है, जिस घर में कमनोशियों का माल जमा है, आमतौर पर कमजोरों का माल जमा है, चाहे स्वीट बैंक की शक्ल में हमारे कमजोर हिंदुस्तानियों का हो, जहां जहां कमजोरों का माल है, खास करके चाहे वो कमजोर वाले मुस्लिम हो, जिसे अली ने जब मालिक अशरफ को मिस्र भेजा तो क्या कहा, मालिक जाओ, वहां दो किस्म के लोग हैं, एक तुम्हारे फिरकत में भाई और एक तुम्हारे दीन में भाई, है कि नहीं? मौला कहते हैं फिरकत के भाई, एक दीन के भाई, उनका पहले ख्याल रखना जो फिरकत के भाई है। तो इस मुल्क में जो कमजोरों का माल है, चाहे जिस मजहब के लोगों का हो, चाहे जिस मजहब के लोगों का हो, जो कानून के बाहर जमा कर रहा है या अपने जाति फायदे में खर्च कर रहा है, सब मजहब है और जो उसके लिए लड़ रहा है वो अली वाला है। हर इलाके में, हर महल्ले में, हर शहर में और आज भी खैबर है और किले खैबर है। दरबारी शायर, दरबारी मौलवी वो है जो उस किले खैबर में आज भी पुलाव खाता है, आज भी शीरवान खाता है, आज भी सब कुछ खाता है। और मौलाई वो है जो उस किले खैबर के बाहर खड़ा होकर उसके चेहरे से नकाब हो जाता है। आज नहीं है क्या दर खैबर की है, सिर्फ नारा लगा, आज भी दर खैबर कि जहाँ शादियां लूट के पैसे से हो रही हैं, क्या कमजोर यतीम बेवाओं के लूट के पैसे से शादियां हो रही हैं, जान रहे हैं, अफवाह नहीं जाना है, तीन चार बातें है लेकिन जैसे खत्म करना है तो सुन ले पूरी बात। ये कह देना कि खैबर खत्म हो गया और हम आके जरा सा अपना तरीका दिखा दो, हम बच्चे के बहुत बड़े मौलाई हैं, कोई ऐसा नहीं होने वाला। तो आज भी दर खैबर है, जंगे खैबर है, किले खैबर है। कौन खड़ा होगा आगे साफ साफ मौत से। आज वो बड़ी बड़ी शादियां जो कमजोरों के पैसों से लूट के हो रही है, जहाँ लोग मौलिया मांगे वाले जाके और हाथ में प्लेट लेके ऐसा जैसे लगता है कि एक एक हिसाब लोग जन्नत में ले जा रहा है। और हमारी से जो दुश्मनी है ऐसे लोगों को है जो कहता हमें यही कहा कि तो आने के पहले कि बाबा तय कर दे उसे बुलाया हराम। हमारे खाकाई की दुश्मनी यही है, हमारे खाने की दुश्मनी एक बजाय यहाँ अलम का कसीदा पढ़ लिया और वहाँ फिर जाली पे परचम के नीचे बैठ गए, जिससे जो कौन को नुकसान पहुँच रहा है जानते, यहाँ अलम का कसीदा पढ़ लिया। इसलिए सुनिए, इमाम ज़माना आएंगे तो रवायतें हैं हमारे मुस्तनद रवायतें हैं कि इमाम ज़माना आएंगे तो फिर इमाम ज़माना अमेरिका इजराइल से निकलेंगे। इमाम ज़माना सबसे सुन ले सारी दुनिया, ये शियत है, ये हमारे इमाम मासूम है जो दिन रात नेताओं के झाड़ू लगाता, अच्छे नेता भी होते हैं, खाली एहतराम उनकी खिदमत करते हैं, लेकिन लुटेरे में उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे दरबारी मौलवी में से लुटेरा नेता है कि नहीं है, इसीलिए पानी में शेर में जाएगा। लेकिन याद रखेगा आपको कि जो लोग दरबारी कहते हैं, जो लोग जालिम और फासिक हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं आम लोग। लेकिन इमाम ज़माना जब आएंगे रिवायत नहीं है, सबसे पहले वो दो और पार्टी वाले होते हैं कि जिस पार्टी में जब ज्वाइन कर ले तो सारा एक बाजार उठ जाता है। अरे शिया समझिए, शिया क्या है, इमाम मासूम क्या है, जो दिन रात बेईमानों से बैठे, वो क्या समझे इस्मत क्या है, इमामत क्या है, वो क्या जाने इस्मत इमामत क्या है। जो दिन रात मेरी पार्टी में आ जाए माफ कर दो, मेरा भाई है माफ कर दो, मेरा अजीज है माफ कर दो। अरे वो और लोग होते हैं कि उनकी पार्टी में ज्वाइन कर लो तो सारा एफआईआर उठ जाएगा, पार्टी छोड़ो एफआईआर तो एफआईआर हो जाएगा। लेकिन क्या कहना हमारे इमाम ज़माना का, मौला की रिवायत है जब मौला आएंगे सबसे पहले झूठे शिया से लड़ेंगे। झूठे शियों ने जितना शियों का नुकसान पहुंचाया है उतना किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। खास करके वो झूठा जो झूठ बोल के कमजोरों का माल लूटता हो, वो झूठा जो कमजोर का। मौला अली ने खिलाफत कबूल की, मौला कहते हैं खिलाफत कबूल करते हैं, मौला कह रहे हैं और मैं अल्लाह ने उलमा से वादा किया है कि गरीबों की दुश्मनी और अमीरों के शिकमपुरी पे खामोश न बैठो। अगर अल्लाह ने
उसे क्या समझ आएगा अली क्या है? जब अली ने समझ में आए तो अली खानदानी क्या समझ में आए? इसलिए हर वो आदमी एक तरफ खानदानी के फेवर नहीं बोला जो मुल्क का माल लूटे होता है, जो आवाम का माल लूटे होता है, तो वो दुनिया के निजाम और होता है। यहाँ के ऊपर दुनिया वाले तालीम और फासिद को और माया को जो करते हैं, जो जिसको दूर वाले पार्टी ज्वाइन किया, इमाम कहेंगे मौलाना ने इमाम हुसैन ने भी ये हमारे इमाम कहने का मकसद इमाम मासूमीन जो ज़मान मकान से पहले ये फोटोन पार्टिकल आप होते हैं ना, ये वो है जिसके ऊपर टाइम का असर नहीं हो। अगर फोटोन पार्टिकल पे जो लाइट का पार्टिकल टाइम का असर ना हो तो जो नूर वाला नूर हो, मैं एक सवाल करना दुनिया वालों जिसके ऊपर टाइम जब टाइम का असर फोटोन पार्टिकल पर नहीं होता और ये जाहिर में माफी नूर हो, तो जो ऐसा नूर हो जिसके सत्य में सब बना हो, तो अगर वक्त के आगे बता दे कल क्या होगा और यहाँ पे कल क्या हुआ था, तो फिर टाइम मशीन दुनिया वाले बनाएंगे। लेकिन इसे अल्लाह ने इस तरह बनाया है कि ज़मानो मकान से ऊपर हो, इसलिए कि ज़मानो मकान पे उसका असर होता है, ज़मानो मकान का उस पर असर होता है जो ज़मानो मकान के बाद होता है। लेकिन जिसे सत्य तो ज़मानो मकान और मैं हमारे इमाम जमीन के अंदर की बातें बताई, जमीन के ऊपर की बात बताई, तो ये इमाम जमीन के नीचे की बात, जमीन के ऊपर की बात बताई, तो क्या लोगों के दिल की बात नहीं बता रहे? और दिल की बात क्या बताएंगे? तुम जितने अधिक छेड़ दो दिल की बात तुम पता चल जाएगी। भाई जितने अधिक छेड़ दो, अरे ये कोई बड़ी बात नहीं, जल्दी से बात नहीं। आज के जब किसी नूर पर बात आ गई जिसको आपको फोटो पार्टिकल का आइए एक्सरे भी क्या है? एक नूर है, हाथ में छोड़ सके तो कैसे पता चले कि हाथ टूटा चली का? इसे आप नोट कीजिए, इधर है सोर्स एक्सरे का, इधर है प्लेट एक्सरे प्लेट, उधर से नूर निकला हमारे हाथ से गुजरा, प्लेट पे बना, प्लेट को देख के बता दिया हाथ टूटा है तो नहीं टूटा। कैसे बताया? क्या न्यूज बताइए उधर से नूर जो निकला एक्सरे से, तो सोर्स से वो सोर्स से नूर निकला, हाथ से निकला एक्सरे प्लेट, तो मानती नूर बता देगा कि हाथ मेरा टूटा है कि नहीं। कितने अली है नूर, जाकिर के मुंह से निकला, कल्ब से गुजरा, चेहरा एक्सरे प्लेट, चेहरा बता देगा दिल टेढ़ा है कि दिल सीधा है। सलाम भेजे आइए जरा सा इख्तियार के कराए यहाँ के ऊपर कुछ लोग बैठे थे, सहाबा बैठे थे और रसूलुल्लाह से पूछे की बात की जैसे डेफिनेशन के खिलाफ आ जाइएगा तो क्या हो सकता है आपका काम जो है वो हल्का होता जाए। क्या एक कदम बढ़ाया था इतनी देर ऊपर एक कदम बढ़ाएंगे उससे बड़ी नहीं, उससे कम रेट में काम डाले बस यही मानता जाए। इख्तियार के सहाबा बैठे हुए और रसूलुल्लाह से पूछ रहे हैं क्या रसूलुल्लाह आप सबसे ज्यादा किसे चाहते हैं? रसूल ने कहा उसके बाद का फलां, का उसके बाद का फलां। तो 3-4 बजे पूछ लिया तो वो पूछता है यार रसूलुल्लाह आपने अभी तक अली का नाम नहीं लिया, आपने अभी तक अली का नाम नहीं लिया, इसके बाद इसको चाहता हूँ, उसके बाद उसको चाहता हूँ, आपके बाद अली के बाद तो रसूलुल्लाह सहाबा की तरफ बातें की और कहते हैं देखो ये कितना नादान है कि हमसे हमारे नफ्स के बारे में पूछ रहा है। तो ये सारा म्यार बयान कर दिया और सारा म्यार दुनिया वालों के सामने, लेकिन अफसोस दुनिया में जब सारी बातों को समेटने में नतीजा नहीं आता तो बस नतीजा ही इस वक्त दुनिया में न इल्म की कमी, न दौलत की कमी है, न माल की कमी, न फितरे की कमी, दुनिया में गैरत की कमी, दुनिया में गैरत की कमी। हम ये तलाश करते फिर रहे हैं
गया, लगता है लाइट है। बड़ा जगह पानी नजर आ गया कि जहाँ पानी नजर आ गया मार्स हो, जुपिटर हो, दूसरी गैलेक्सी हो, जहाँ पानी है इसका मतलब लाइट है। तो लोग पानी देख रहे हैं लाइट के लिए, हम आंखों में पानी देख रहे हैं गैरत के। सबके बाद गैरत नहीं, इतना बड़ा बड़ा जुल्म हो जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी लूट हो जा रही है। हमसे दुनिया वाले पूछते हैं कि ये क्यों हो गया, तो वो ऐसा क्यों है, उसने 200 बच्चों को मीनार में मार दिया, कोई सवाल करने वाला नहीं। एक बच्चा की बकरी हो जाए तो हला सवाल, ये गैरत की कमी, इल्म की कमी है। अरबों खरबों शिया कौम का माल डूब गया और उसके यहाँ नहीं जाना है, कोई नहीं जाना कहाँ लिखा हुआ है, जो दूसरा कहाँ लिखा हुआ है उस पर कोई नहीं पूछेगा। जब ये शख्स अरबों रुपए लूट चुका है शिया कौम, कमजोर शियों का जिसने इमाम से जान, इमाम ने वो जब लूटता है तो कोई आवाज नहीं उठती है। और अगर आप उसका मस्जिद पढ़ेंगे, मस्जिद पढ़ जाना गलत है, इस्लाम शरीयत से मना है, उसके लुटेरे क्या तबरुक जखाना है। कुरान क्या आयत भूल जाएंगे, कुरान में जब जहन्नम में जाने की आयत आई है तो एक आयत ये भी है और बात है कि जहन्नम में वो लोग जो जहन्नम कहते हैं, हम जहन्नम में इसलिए गए कि गरीब को खाना नहीं खिलाते थे, और गरीबों को खाना न खिलाओ तो जहन्नम में चले जाओ, जो गरीबों का खा ले उसके यहाँ खाओ तो खाने वाला चला जाए। उस वक्त कोई सवाल नहीं करता है और ये पूछते हो क्या है, जब इमाम ने मदद करके गाजिब का जाना मना है, लेकिन गाजिब के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल गैरत का है। सबके पास सब पूछे कि क्या इमाम की शहादत है, जल्दी सबकी इजाजत में जो गैरत कर जाए ये पूछना, फिर इसके बाद सुने आप उससे रहेंगे और खुद है ये बहुत इगाने इमाम तो सबकी भी क्या जानते हैं, आज जो सबकी हो रही वो जानते हैं, आप ये नहीं, आज यदि सबकी आपके ऊपर है सारी दुनिया में, ऐसा ना हो तो बिना तो पूरा नहीं पैदा हो, ना तो कोई मांगना नहीं पैदा हो, पूरा प्लान अभी भी है, कोई इनकलाबी ना पैदा हो जाए, वो जो जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए। उसी तरह ग्यारहवीं इमाम पे सारी सब्जी थी कि यही पेशन गोई थी कि इमाम ये भी यही पैदा हो, इतनी सब्जी करो कि यहाँ इमाम पैदा ना हो सके, वो सारे कैद खाने में रखना, सब्जी करना पड़ा कर इमाम को पैदा होना था, विलादत पूरी हो गई। अब इमाम आकर जुड़ा है, दुनिया की सबसे बड़ी बेगैरती और तारीख की बेगैरती है कि इमाम आज तक गैरत में और जुड़ा है। दुनिया वाले ये पूछते हैं ये कब तक जिंदा रहेंगे, कैसे जिंदा है, इसका जवाब तो हजार है, जैसे ईसा जिंदा है, जिंदा है, दुनिया जिंदा है, लेकिन ये सवाल ये कब तक जिंदा रहेंगे। आज तक दुनिया ने ये सवाल नहीं किया कि 11 के 11 दुनिया से गए कैसे, 11 के 11 दुनिया से जमात पूरा किसी ने ये नहीं पूछा कि 11 के 11 दुनिया से गए, कोई अपनी मौत दिया, कोई अपनी मौत दुनिया से दिया, जो गया वो शहादत, कोई अपनी मौत दुनिया से नहीं। लेकिन जरा ये बताइए, ये सवाल करना ये कब तक जिंदा है, आज तक इसने सवाल नहीं किया कि ये शहादत हर है, हर इमाम का तय है, इतनी शक्ति और हमारे ऐसे और मैं 5 तो तय किया, कोई मामूली जहर नहीं था, वो ऐसा जहर था तो नहीं कर सकते, क्योंकि इमामों के यहाँ कहीं काफी होने के लिए मिला कि सबसे सख्तरीन हालत में भी ये बैठ के नमाज नहीं पढ़ते। जब बैठने का जिक्र आता है तो बड़ा दुख सामने आता है। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब बैठ के नमाज पढ़ी तो सैयद सज्जाद का निशान हो गए कि दुनिया हमने आपको नमाज शख्स सामने गरीबा पढ़ते हुए देखा तो आप खड़े होकर नमाज पढ़े। आज जब बैठ के नमाज यही जाने इमाम के साथ 5 तारीख को जब मौला को अवेलेबल को जहर दिया गया तो मौला की कैफियत उस जहर से ऐसी हो गई थी कि बिस्तर पे वो बैठ के नमाज पढ़ने लगे। अजीजों, जहाँ पे जनाब ज़ैनब अरे शाम गरीबा पड़े होकर नमाज पढ़ रही हो, 3 दिन की भूखी प्यासी, इमाम पे क्या असर हुआ था कि इमाम बैठ के नमाज पढ़ रहे थे। अजीजों, जनाब ज़हरा कितना जुल्म हुआ, लेकिन जनाब ज़हरा अपने बिस्तर
जाती थी, खड़े होकर नमाज पढ़ती थी। जनाबे ज़ैनब खड़े होकर नमाज शान गरीबा पढ़ रही थी। लेकिन हाय मेरे इमाम पे पहले दिन का असर ये था कि इमाम बैठ के, और जब 7 रबीउल अव्वल आज की तारीख आई और कल 8 रबीउल अव्वल जब इमाम की सुबह में शहादत हुई, अरे आज 7 रबीउल अव्वल वो वक्त आ गया कि इमाम पे ज़हर का असर ऐसा हो गया कि इमाम बैठना तो दूर की बात, मौला सही तौर पे लेट भी नहीं पा रहे थे। लेट के सुबह की नमाज अदा की, गुलाम से पानी मांगा, अरे पानी जैसे लेके आया, पानी को पकड़ा, हाथ से पानी छूटा, पानी गिरा, मौला की शहादत हो गई। अचानक पर्दा कहकर उठा, जब इमाम ज़माना आए, आने के बाद जैसे तहदिया किया गया था, उस पर भी इमाम आए थे। हमारे कारवां में कहा, बेटा जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ी है, तुम ही एक वारिस रह गए हो, दुनिया मार देगी। फिर रैबत में गए, लेकिन जब दम निकल गया, नमाज के लिए चचा उनके खड़े हुए, इमाम आए, नमाज पढ़ाई चले गए। जरा गौर कीजिए, सैयदे सज्जाद पे क्या गुजरी होगी। यहाँ इमाम ज़माना तो आ गए, लेकिन सैयदे सज्जाद बाप का जनाजा पड़ा हुआ है, हाथों में हथकड़ी, पाँवों में बेड़ी, हाय मेरा बेटा से मां करे मातम हुसैन। के लिए मैं दरख्वास्त मोहतरम अब्बास अली आरफी साहब से तो तशरीफ लाएँ। नौम खानी के लिए मोहतरम अब्बास अली आरफी साहब तशरीफ ला रहे हैं। ये बच्ची जिसका नाम आयशा है, वो अपने वालिदैन से गुम हो गई है, वो यहाँ स्टेज पे है। इसके वालिद का नाम मोहम्मद असद है। आप जिसकी भी बच्ची हो, मोहम्मद असद साहब से दरख्वास्त है कि वो डाइस से ले लें। बार बार आपसे ये गुजारिश की जा रही है वालिदैन से कि अपने बच्चों के पॉकेट में नंबर लिख के डालते हैं, अपना मोबाइल नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनकी पॉकेट में डालते लिखकर, ताकि अगर बच्चा खुदा न खास्ता गुम भी हो जाए तो आसानी मिल जाए और आपको भी प्रॉब्लम ना हो, और जो यहाँ इंतजामिया है उसके लिए भी ये प्रॉब्लम की बात ना है। अब्बास अली आरफी साहब अगर तशरीफ नहीं रखते तो अंजुमन गुलामान अंजुमन गुलाम अहले बैत सीना ज़रीबा नवाखानी करने के लिए तशरीफ लाए। अंजुमन गुलाम अहले बैत सीना ज़रीबा नवाखानी करने के लिए तशरीफ लाए। इसके बाद इंशाअल्लाह ये जुलूस छोटी करबला तक जाएगा और छोटी करबला में जाके इख्तिताम पजीर होगा। अंजुमन गुलाम में अहले बैत आपके सामने है। मातम हुसैन।
زندانوں میں چھوٹی سی ایک ہے قدم، ایک ہے قدم، قید زندان میں چھوٹی ایک ہے قدم، جانے کب ہو تیرے ہاں، جانے کب ہو تیرے ہاں، جائے گی وہ اپنے وطن، ایک ہے قید زندان میں چھوٹی سی ایک ہے قید، سلامت رہو مدندر، جانے کب ہو زندان میں چھوٹی سی ایک ہے قید، ایک ہے قید، زندان میں چھوٹی سی ایک ہے قید۔ اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ۔